Today we will see validation summary control and custom validator control. In the last lecture we have already seen one website, example of website, and in this example we already see the use of validation summary control. So let's see what is mean by validation summary control. It enables you to display the list of all validation errors in a page in one location. So in this example you know that वहाँ पे हमने जितने वैलिडेशन कंट्रोल्स अप्लाई किए थे, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन कंट्रोल, कस्टम कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल, रेंज वैलिडेटर कंट्रोल, रेगुलर एक्सप्रेशन कंट्रोल, and for every validation control there is one property error message, and in that property we give the message what error message you want to display. So at last we used validation summary control, and when we used validation summary control all the error messages are shown at one location. So this is the use of validation summary control, particularly useful when working with large web forms. List of error displayed at the top of the form. Error message property represent the validation error message that appear in validation summary control. If the value of text property is not assigned, then the value of error message property is displayed in both the validation summary control and the body of the page. Custom validator control. Here the custom validator control is user defined control. So call a user defined function to perform validations that the standard validator can't handle. Suppose you want to define some validation that are not handled by the predefined validation control, then that time you can create or you can use custom validator control. This custom validator control execute the function on server side as well as on client side. When we execute on client side, we use the scripting languages JavaScript and or VBScript. So let's see one by one. Server side custom validation. The name of this custom function must be defined in server validate function. So once you decide server side custom validation, then in that case you have to create one function. Name of this function is server validate, and this function is placed on one property or delegate on server validate. So place your custom validation in a validators on server validate delegates. Let's see one demo, and in that demo we used server side custom validation control. So here is my website, and in this website the design view of my page is look like that. डिज़ाइन व्यू ऑफ दिस माई पेज इज़ लुक लाइक दैट. एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लिया है मैंने, देन लेबल, उसके बाद ये आपका कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल है, एंड देन वन बटन. अब हम ये डिज़ाइन हमने किस लिए किया है? टू चेक वेदर द एंटर्ड नंबर इज़ इवन और नॉट. तो इसकी ये डिज़ाइन व्यू है. सोर्स फाइल इज़ हियर. सोर्स फाइल में अगर हम देखेंगे, सो इन द बॉडी टैग और इन फॉर्म टैग द लेबल इज़ हियर. लेबल पे जो टेक्स्ट मैसेज हमने दिया था, एंटर एन इवन नंबर. देन देर इज़ वन टेक्स्ट बॉक्स. ID property of text box is txtnum, and then after we use a custom validator control. So simply यहाँ पे आपने custom validator control आपको यूज़ करना है. Then in that case custom validator control is used. ID is cust_num run at equal to server. Then there is one property जो हमने इसके पहले प्री डिफाइंड वैलिडेशन कंट्रोल के लिए भी अप्लाई की थी, कंट्रोल टू वैलिडेट. सो यहाँ पे हमें कंट्रोल टू वैलिडेट किसके लिए अप्लाई करना है? कंट्रोल टू वैलिडेट ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए.
तो ये जो हमारा कस्टम वैलिडेशन कंट्रोल है, इसकी हमने जो कंट्रोल टू वैलिडेट हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट, यहाँ पे लिस्ट आ जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स हमने दिया है। देन सेकंड इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इज़ सर्वर साइड हम ये देख रहे हैं, तो ऑन सर्वर वैलिडेट, तो यहाँ पे लिस्ट में आपको यहाँ पे ऑन सर्वर वैलिडेट करके दिखेगा, ठीक है। हम यहाँ पे सर्वर साइड कस्टम वैलिडेशन देख रहे हैं, तो ऑन सर्वर वैलिडेट प्रॉपर्टी हमें लेनी है, एंड दैट इज इक्वल्स टू आपको जो फंक्शन क्रिएट करना है, द नेम ऑफ दिस फंक्शन इज सर्वर वैलिडेट फंक्शन, ओके। तो वो फंक्शन का नाम आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अब ये फंक्शन हमें कहाँ पे डिफाइन करना है, सो इन कोड फाइल ऑफ दिस वेबसाइट, उसकी कोड फाइल, ठीक है। कोड फाइल में हम ये देखो, यहाँ पे हमने देन फंक्शन नेम एंड द पैरामीटर लिस्ट, तो इस तरीके से हमने ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है, सर्वर वैलिडेट सब। अब यहाँ पे VB.NET के अंदर सब एंड एंड सब, इसके ये आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना रहता है। तो सर्वर वैलिडेट फंक्शन, अब यहाँ पे हमने ट्राई कैच लगाया है, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाया है। देन वी डिफाइन वन वेरिएबल डीम नम एज इंटीजर int 32 एंड इंटीजर वैल्यू। अब वैल्यू हमें लेनी है, जो टेक्स्ट बॉक्स में हम वैल्यू एंटर करेंगे वो वैल्यू हमें लेनी है और वो असाइन करनी है नम वेरिएबल को। सो इन दैट केस int 32 डॉट पार्सिंग यहाँ पे कर रहे हैं हम वैल्यू डॉट वैल्यू। अब ये जो पैरामीटर है इस फंक्शन का, जो पैरामीटर है सेकंड पैरामीटर, ये आपका आर्ग्यूमेंट है, तो जो भी हम वैल्यू एंटर करेंगे दे आर टेकन आउट फ्रॉम दिस वैल्यू टेकन आउट फ्रॉम दिस कंट्रोल बाय यूजिंग दिस वैल्यू नेम, वैल्यू डॉट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वो वैल्यू आ जाएंगी एंड दिस वैल्यू इज इंसर्टेड इनटू दिस वेरिएबल नेम। देन सिंपली है, हमें देखना है वेदर द नंबर इज़ इवन और नॉट। तो क्या करेंगे हम, मॉड्यूलस निकालेंगे, उसका मॉड निकालेंगे डिवाइडेड बाय 2 करके, और अगर वो 0 आता है देन द नंबर इज़ इवन, अदरवाइज नंबर इज़ ऑड। तो यहाँ पे हमने num mod 2 इक्वल टू 0, देन वैल्यू डॉट इज़ वैलिड फंक्शन क्या करता है, टू चेक वेदर द वैल्यू इज़ वैलिड और नॉट, तो ट्रू और फॉल्स ये वो रिटर्न करेगा। सो इफ़ इट इज़ इवन नंबर देन इट रिटर्न ट्रू, इफ़ इट इज़ नॉट देन इन दैट केस इट रिटर्न फॉल्स। तो इस तरीके से ये सर्वर वैलिडेट फंक्शन हमने कहाँ पे लिखा है, इसको हमने इसको कोड फाइल पे लिखा है, ओके। फिर से हम डिज़ाइन पेज पे आते हैं सोर्स फाइल में। अब उसके नीचे सबसे लास्ट में हमने एक बटन ली है। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस बटन, इस बटन का यूज़ क्या है, वंस आई एंटर द नंबर आई क्लिक ऑन दिस बटन एंड व्हेन आई क्लिक ऑन दिस बटन माय पेज इज़ रेंडर टू सर्वर साइड। और जब वो सर्वर साइड रेंडर करेगा तो हम यहाँ पे सर्वर साइड कस्टम वैलिडेशन देख रहे हैं, तो ये एग्जीक्यूट, ये जो भी फंक्शन हमने यहाँ पे कोड फाइल में लिखा है, दिस फंक्शन इज़ एग्जीक्यूटेड ऑन सर्वर साइड, ओके। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे बटन पे, तो इसकी जो कोड फाइल है बटन की, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं इफ़ योर पेज इज़ वैलिड और नॉट, जो एंट्री है वो की है या नहीं की है। इफ़ इट इज़ एस देन पेज इज़ वैलिड, जो एंट्री आपने की है और जो भी आपकी जो फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वैल्यू, वेदर द नंबर इज़ इवन और नॉट, तो डिपेंडिंग ऑन दिस वैल्यू आपका ये प्रिंट जो है वो मैसेज हो जाएगा, ठीक है। LBL आउटपुट डॉट टेक्स्ट यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा। सो लेट्स टू रन दिस वेब पेज ऑन ब्राउज़र। हम सर्वर साइड वैलिडेशन देख रहे हैं, व्यू इन ब्राउज़र।
तो ये हमारा वेब पेज ओपन हो गया ब्राउज़र में। एंटर एन इवन नंबर। इफ़ आई एम एंटरिंग 4 वैल्यू एंड क्लिक ऑन दिस बटन, तो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगी, इन दैट केस योर पेज इज़ रेंडर्ड टू सर्वर साइड, और जो आपका जो फंक्शन है सर्वर वैलिडेट वो एग्जीक्यूट होगा एट सर्वर साइड। सर्वर साइड इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि हमने वहाँ पे ऑन सर्वर वैलिडेट ये प्रॉपर्टी यूज़ की है, वो डेलीगेट यूज़ किया है और उस डेलीगेट के थ्रू हम उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो क्लिक ऑन वैलिडेट, तो पेज इज़ वैलिड। इफ आई एम एंटरिंग 5 एंड क्लिक ऑन वैलिड, पेज इज़ इनवैलिड। उसके साथ साथ उसने ये मैसेज भी डिस्प्ले किया, नॉट एन इवन नंबर। सो इन दिस केस यहाँ पे हमने क्या देखा है, हमने देखा है कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल एंड एग्जीक्यूट दैट कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल ऑन सर्वर साइड। सर्वर साइड हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ इट इज़ एग्जीक्यूटेड ऑन क्लाइंट साइड। हम क्लाइंट साइड भी वो एग्जीक्यूशन हो सकता है। सो हाउ कैन इट इज़ पॉसिबल? The name of the custom function must be identified in client validation function property। अब यहाँ पे भी कस्टम वैलिडेशन की एक प्रॉपर्टी है क्लाइंट वैलिडेशन फंक्शन। दिस इज़ द प्रॉपर्टी अगर आपको आपका फंक्शन वैलिडेशन फंक्शन क्लाइंट साइड एग्जीक्यूट करना है तो। द कस्टम फंक्शन मस्ट हैव द फॉर्म फंक्शन माई वैलिडेटर इन ब्रैकेट सोर्स एंड आर्ग्यूमेंट। तो ये एक एग्जांपल दिया है। सो व्हेन यू क्रिएट क्लाइंट साइड कस्टम वैलिडेशन फंक्शन, तो आपको इस तरीके का ये फंक्शन डिफाइन करना है, बनाना है इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, आइदर वीबी स्क्रिप्ट या फिर जावा स्क्रिप्ट। तो व्हेन वी यूज्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, योर एग्जीक्यूशन ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस ऑन क्लाइंट साइड नॉट ऑन सर्वर साइड। तो फंक्शन का नाम जैसे ये फॉर एग्जांपल माई वैलिडेटर इज़ द फंक्शन नेम एंड पैरामीटर क्या रहेंगे, सोर्स एंड द आर्ग्यूमेंट। सो सोर्स मीन्स व्हाट? सोर्स इज़ द क्लाइंट साइड कस्टम वैलिडेटर ऑब्जेक्ट। क्लाइंट साइड का वो कस्टम वैलिडेटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो वैलिडेशन चेक करेगा। एंड द आर्ग्यूमेंट इज़ एन ऑब्जेक्ट विथ 2 प्रॉपर्टीज़, वैल्यू एंड इज़ वैलिड। तो वैल्यू से आप आर्ग्यूमेंट जो भी आप एंटर करोगे वैल्यू, वो आपको आर्ग्यूमेंट के थ्रू मिल जाएंगी, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जो भी प्रॉपर्टी रहेगी वैल्यूज़ के थ्रू। और इज़ वैलिड ये रिटर्न करेगा वेदर योर वैल्यू इज़ वैलिड और नॉट। द वैल्यू प्रॉपर्टी इज़ द वैल्यू टू बी वैलिडेटेड एंड इज़ वैलिड प्रॉपर्टी इज़ द बुलियन वैल्यू यूज टू सेट रिटर्न द रिजल्ट ऑफ द वैलिडेशन। तो इस तरीके से क्लाइंट साइड कस्टम वैलिडेशन हम यूज़ कर सकते हैं। अगेन लेट्स सी द सेम एग्जांपल। इसी एग्जांपल में हम अगर क्लाइंट साइड कस्टम वैलिडेटर देखना चाहते हैं तो हमें सिर्फ क्या चेंजेस करने हैं, ये हमारा पहला ही एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है, ये मेरा पहला एग्जांपल है। तो यहाँ पे ये कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल है, सोर्स फाइल में इसकी ओपन करूँगी, ये हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ आर सेम, आईडी प्रॉपर्टी रन एट कंट्रोल टू वैलिडेट सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे ये हट जाएगा। ऑन सर्वर वैलिडेट हम किस केस में यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड इन सर्वर साइड वैलिडेशन। तो सर्वर साइड अगर मुझे वैलिडेशन करने हैं तो मुझे ऑन सर्वर वैलिडेट प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अब हम देख रहे हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन। तो यहाँ पे क्लाइंट साइड वैलिडेशन अगर हमें देखना है तो हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज क्लाइंट वैलिडेशन फंक्शन। क्लाइंट वैलिडेशन फंक्शन ये प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है एंड इज इक्वल टू गिव द नेम ऑफ द फंक्शन। आप जो भी फंक्शन क्रिएट कर रहे हो उसका नाम आपको देना है, ठीक है। जैसे अभी हम इवन नंबर चेक करें तो इवन नंबर करके फंक्शन का नाम दिया। अब ये फंक्शन हमें कहाँ पे लिखना है? इट इज़ रिटर्न इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हमें इसको लिखना है। तो हम कहाँ पे लिखेंगे? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम कहाँ लिखते हैं? टाइटल के अंदर, हेड टैग के अंदर, ठीक है। तो जो हेड टैग है उसके बाद टाइटल टैग आएगा एंड देन आफ्टर स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग में यहाँ पे आपको टाइप स्पेसिफाई करना है, आइदर जावा स्क्रिप्ट या वीबी स्क्रिप्ट। एंड इन दैट स्क्रिप्ट टैग राइट द फंक्शन इवन नंबर। सो फंक्शन इवन नंबर एंड आपको एग्जाम्पल में वहाँ पे बताया था कि आर्ग्यूमेंट्स क्या रहेंगे? सोर्स कॉमा आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो लेट्स चेक इफ़
आर्ग्यूमेंट से क्या मिलेंगी हमें वैल्यू, तो वैल्यू हमें कहाँ से मिलेंगी, आर्ग्यूमेंट्स डॉट वैल्यू से हमें वैल्यू मिलेंगी। मॉड्यूलस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 अगर है तो आर्ग्यूमेंट्स डॉट इज वैल्यू इज वैलिड इज इक्वल टू ट्रू, एल्स आर्ग्यूमेंट्स डॉट इज वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स। तो इन दिस वे ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो अब हम इसको व्यू इन ब्राउज़र करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये हमने ओपन किया हमारा वेब पेज। अब हम देख रहे हैं क्लाइंट साइड कस्टम वैलिडेशन। तो क्लाइंट साइड अगर हमें करना है चेक अगेन, 4 वैल्यू हमने ली। अब देखो जब व्हेन आई क्लिक ऑन दिस बटन आपका पेज रेंडर नहीं होगा। देन 5 वैल्यू एंड क्लिक ऑन दिस बटन, नॉट एन इवन नंबर। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो क्लाइंट साइड एज वेल एज सर्वर साइड। So summary of this today's agenda is enables you to display the list of all validation errors in the page in one location. Error message property represent the validation error message that appears in validation summary. Call a user defined function to perform validation that the standard validators can't handle. The custom function can execute on server or in client side script such as JavaScript and VBScript. The name of the custom function must be identified in server validate function. The name of the custom function must be identified in client validation function property. Thank you.